Gopijana Balabha Girivara Dadi Jashodanandana Brajajanarandana Jashodanandana Brajajanarandana Jamunatiravana Jadi Jamunatiravana Jadi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Hadi Gopijana Balabha Girivara Dadi Gopijana Balabha Girivara Dadi Jashodanandana Brajajanarandana Jashodanandana Brajajanarandana Jamunatiravana Jadi Jamunatiravana Jadi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Hadi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Hadi Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Astatarasatasi Simadas Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupāda Ki Ananta Koti Vaishnavarinda Ki Śrīla Prabhupāda Ki Gaur Premanandi. Hare Krishna, please acquire my obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda, all glories to Maharaj. अभी हम लोग सुन रहे हैं एजोरियन सच्चिदानंद स्वामी महाराज से रिसेंट लेक्चर गोवर्धन पर महाराज ने प्रभुपाद तिरुभाव पर दिया. मुख्य रूप से महाराज पहले बोल रहे थे कि इतने सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, तो इन सभी वेद शास्त्रों का जो सारांश यदि एक श्लोक कौन सा है, ऐसा महाराज ने शुरुआत किया और फिर उसको उस श्लोक को उन्होंने बताया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु. तो ये यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा है भगवान में और गुरु में, तो उन्हें जो वेदों का, जो शास्त्रों का जो सारांश है वो उन्हें उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा. ये हम कई बार सुनते हैं और ये
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंटेलेक्चुअल कंटेनर के द्वारा हम ये दिव्य ज्ञान को ले पाएंगे, परंतु ये दिव्य ज्ञान इस तरीके से प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। और इसको और आगे, और ये कैसे होता है कि ऐसे संतों की, ऐसे गुरुजनों की जब हम चरण धूलि लेते हैं, तो उसको महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे, चरण धूलि लेना क्या, या वास्तविकता में शरण धूलि लेना वो भी है, क्योंकि जब रजोभिषेकम से करें, परंतु उससे भी और उसका और गहराई है। आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, डिवोटीज कैन ऐड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को शायद महाराज कोट कर रहे थे कि सो वो इसको और एलोबरेट करते हैं। और सो उनके चरण धूलि, उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं हैं, श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, अन्य आचार्यों की शिक्षाएं हैं, तो वो उन शिक्षाओं का पालन करना। सो ये आई कैन रिकॉल, एंड devotees विल hear from Maharaj further. See if his feet touched the floor, but then I would have disturbed him with this unusual position. So I controlled myself. He was very absorbed, and I could see he was not alone. There was a presence in his heart, or with him, that made him move, that made him absorb like this. In a letter to one devotee, Trivikram Maharaj, I think at that time not yet, he written in December ये कुछ वॉइस 1974, I don't know, maybe कुछ he नॉइज was आ रहा है अखिलदार प्रभु, ऐसा ही है क्या है रिकॉर्डिंग? कैन यू डू समथिंग टू इट? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, रिकॉर्डिंग ही है ऐसा। आई डोंट थिंक सो। देखता हूँ, एक और आवाज प्ले करता हूँ, लेट्स मी नो कि अगर बेटर है क्या कुछ। हाँ, जो कल बेटर था, तो थोड़ा पीछे करके देखिए, थोड़ा क्या पीछे का प्ले करेंगे तो पता चलेगा शायद। words of knowledge. I want to leave this for others. I think it's every year it's done like this at least. I would like to draw your attention to Prabhupada's outstanding example. सेम है ब्रो, कुछ ट्रांसमिशन का ट्राई करके देखिए, यदि कुछ हो सकता है। Certain graciousness, if I would have been able to, I always wanted to lie down on the floor and see if his feet touched the floor, but then I would have disturbed him with this unusual position. So I controlled myself. He was very absorbed, and I could see he was not alone.
there was a presence in his heart or with him that made him move, that made him absorbed like this. In a letter to one devotee, Trivikram Maharaj, I think at that time not yet, he written in December 1974, I don't know, maybe he was at that time. What? He was 74, Trivikram Maharaj. You can see a little bit of the hidden place in Prabhupada's heart. This is the letter. Brahmananda Swami, तो थोड़ा और प्ले कीजिएगा, एक्चुअली आई कुड नॉट हियर इट, he says, context. seem to think that you need more men there. Then he quotes the telegram from Brahmananda. Trivikram alone, more men required urgently. I do not understand what he means by alone. What is this alone? Vaishnava is never alone. When I first came to the United States, I was seemingly alone for 1 year. But I never felt alone. I always felt the presence of my Guru Maharaj. Myself, I was cooking, I was printing books, I was selling books, everything seemingly alone. But I did not lose my determination. Actually, you should know this. You are never alone. Now, psychologically, the feeling of being alone is one of the greatest trouble for us. That's why no one can refrain from using their mobile telephone even for a moment. Maybe you're using it now. Yes, I spotted one. Yeah, thank you so much, Prabhu. So ये महाराज समझ में आ रहा है, श्रीला प्रभुपाद की लीला समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद वो देखते थे। प्रभुपाद हमेशा एक बहुत ही एक ऑब्जॉर्प्शन में रहते थे, यानी ध्यान मग्न अवस्था में, और ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ हैं, क्योंकि जब आपके साथ में कुछ है, आपके हृदय में ऐसा कुछ टेंजिबल है जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तब आप एक एकाग्र या फिर उसमें आप ध्यान मग्न हो सकते हैं। सो तो यहाँ पर शायद किसी डिवोटी को ये लेटर है, और उसमें ब्रह्मानंद स्वामी महाराज ऐसा कि उनका हिज टेलीग्राम नीड्स त्रिविक्रम अलोन, मोर मैन रिक्वायर्ड अर्जेंटली। तो उन्होंने लिखा त्रिविक्रम स्वामी महाराज के लिए कि वो अकेले हैं, उनको और ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद उस जो एक शब्द है कि वो अकेले हैं, उस शब्द को पकड़ करके और उसको एक्सप्लोर करके, ये अकेला कैसे हो सकता है, अकेले का मतलब क्या है, क्योंकि वैष्णव तो कभी अकेला हो ही नहीं सकता, राइट। तो और प्रभुपाद फिर उदाहरण देते कि जैसे प्रभुपाद हमने कई बार सुना है कि मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा थे। हम बोलते हैं, परंतु प्रभुपाद वो अनुभव करते थे, गुरु हमेशा है, भगवान कृष्ण मेरे साथ में। तो उसी शिक्षा को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वैष्णव कभी अकेला नहीं होता है। और वो जब मैं अमेरिका में आया था तो एक ऐसा प्रतीत होता, सीमिंगली मैं अकेला था 1 साल तक, पर लेकिन मुझे अपने गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ में थे।
मैं प्रसाद बना रहा था, किताबें छाप रहा था, पुस्तकों का वितरण कर रहा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गुरु अपने आदेशों के जो जो आदेश देते हैं, उन आदेशों को जो पालन करते हैं, वो हमेशा गुरु के साथ में ही रहते हैं। सो ये ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये पर्टिकुलर ये तो ये जो पार्ट है वो सचिदानंद स्वामी महाराज बता रहे हैं। या इसको प्रभुपाद ने समझाया और आगे और हम सुनते हैं। तो अभी आगे शायद महाराज ने बोला नहीं है, आई जस्ट वेट फॉर महाराज टू स्पीक। It is trouble for us. That's why no one can refrain from using their mobile telephone even for a moment. Maybe you're using it now. Yes, spotted one. It might be that you did some important things. Please don't take offense. But it is a fact psychologically that if someone feels entirely abandoned by God and the world, they say in poetry, it's a very, very difficult situation. Therefore, the fear of being alone and the fear of death are shoulder and shoulder as in terms of fears. Only a great soul who has been able to touch the Lord's lotus feet, or who touching the lotus feet, who is in other words in the best company of Krishna, can overcome this problem. When you are afraid of being alone by yourself, it means you are in very bad company. You need to do something. You didn't catch it. We are only with people in a room whom we trust. When we are with a rascal in a room, we are very bad. So when you sit alone in your room and you feel ill at ease, it means you are in bad company. या थैंक यू प्रो। सो आगे महाराज ये प्रभुपाद का ये लेटर पढ़ने के बाद इसको और समझा रहे हैं कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वैष्णव कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा अपने गुरुजनों की और उनका उनकी अनुपस्थिति सॉरी उनकी उपस्थिति को उनके सेवाओं के द्वारा महसूस करता है, उनकी सेवा करके। महाराज बोल रहे हैं परंतु ये वास्तविकता है कि आज के जो समय देख रहे हैं, जो आजकल मोबाइल फोन्स, और तो जैसे ही व्यक्तियों की ये जो अकेलापन देख रहे हैं, ये बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इसको समझेंगे तो ये बहुत एक भय है। इस चीज का जो भय है, मृत्यु के भय के समान है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा अकेला होता है, कुछ भी लगता है, तुरंत वो मोबाइल फोन उठाते हैं या टीवी देखते हैं, या फिर मतलब क्योंकि वो बहुत अकेला रहना वो अपने आप में बहुत बहुत ही भयावह होता है, मृत्यु के समान तरीके से उसका समान दर्जा दिया गया भय का। परंतु ये हम देखते हैं कई सारे ऐसे महान भक्त वो अकेले रह पाते हैं, और वो कैसे वो अकेले होते नहीं है, हमको अकेले दिखते हैं, इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं। एंड ये तो ये जब मैं महाराज से सुन रहा था तो मेरे को एकदम जो मेरे छवि एकदम जो चेहरे पर आई, गुरु महाराज, हम लोग
केरल में थे, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम कोई भी नहीं आता महाराज से मिलने मिलने, कुछ नहीं। एंड ही इज जस्ट अपनी बुक्स के साथ, अपने लैपटॉप के साथ है महाराज। और हमको सर्विस के लिए जाते थे और दरवाजा खोले, महाराज सो हैप्पी। लगता है कि जैसे किसी के साथ एकदम बहुत एकदम कन्वर्सेशन करके कोई जस्ट जुबिलेंट हो। तो ये महाराज जो बोल रहे थे एकदम वो, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ शेयरिंग। तो ये एक ऐसे महान आत्मा है जो कि भगवान के साथ, उनका कृष्ण के साथ संबंध है, वो उस संबंध को महसूस है तो हम सभी का, परंतु वो उसको महसूस, वो जानते हैं, उस संबंध पे कार्य कर रहे हैं उनसे। तो वो, उनको वो ये अकेलापन का समस्या नहीं है। सो ये, तो यदि ये ऐसा है तो हमें ये यदि ये अकेलापन की जो समस्या है तो उसको हमको समझना चाहिए कि क्या, तो संबंध गुरु से, भगवान से और साधुओं से, उनके आदेशों से शायद उधर पे सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि सामान्यतः हम उन्हीं लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं जो कि जिन पर हम विश्वास करते हैं, और थोड़ा हम अकेलापन से भागते हैं। तो आगे समझते हैं महाराज का क्या समझाना चाह रहे हैं। स्टिल ट्राइंग टू ग्रेस। Catch it. We are only with people in a room whom we trust. When we are with a rascal in a room, we are very bad. So when you sit alone in your room and you feel ill at ease, it means you are in bad company. You need to change something in your personality. And this is very important. Therefore, Burijan Prabhu, he has designed a new retreat, alone with Krishna. I said to him, people will be afraid of this title, Alone with Krishna. Especially our Hare Krishna, Hare Ramas, they can't be alone. And then no mobile telephone. Why don't you call it Together with Krishna? It's the same, but no, let us call it Alone with Krishna. My dear devotees, only someone who is together with Krishna can be alone. And this is what Srila Prabhupada's example is there. In the CC, he says, he talks, Tulasi parikrama kara tulasi sevana nirantara Krishna nama kariha kirtana. After planting the tulsi tree before your house, you should daily circumambulate that tulasi plant. Serve her by giving her what? Water, yes, and other things, incense, flowers, and continuously chant the Hare Krishna Mahamantra. And then Prabhupada gives instructions how we should do this. He says, a small cottage can be constructed without any expenditures. 4 logs serving as pillars can be secured by any man from the forest. The roof can be covered with leaves. And one can cleanse the inside. Thus one can live very peacefully in any condition. Any person can live in a small cottage, plant a tulasi tree, water it in the morning, offer it prayers, and continuously chant the Hare Krishna Mahamantra. Thus one can make vigorous spiritual advancement. This is not at all difficult. So here you can see Prabhupada's heartbeat a little bit. I will draw to the close now. हरे कृष्णा। सो महाराज समझा रहे हैं कि जो कृष्ण, ये जो नया एक रिट्रीट का नाम है,
इसको महाराज वहां ले जा रहे हैं। तो जब हम सामान्यतः अकेले रहने से बहुत भय होता है, अकेला रहना यानी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। इसलिए हम आजकल जो भी सोशल मीडिया गैजेट्स उसमें व्यक्ति लग जाता, अकेला, अकेले विद मोबाइल फोन। तो ऐसा नहीं। सो हमारा समझा रहे हैं कि अभी भुरीजन प्रभु जी ने इसलिए एक रिट्रीट, अभी हम लोग रिसेंटली जस्ट गया था तो हम देखा उसका एडवर्टाइजमेंट था, अलोन विद कृष्णा। हम अकेले, मतलब अलोन, अकेले हम प्रतीत हो सकते हैं, पर लेकिन हम सब कृष्ण के साथ ही रह सकते हैं। हमारा करके थोड़ा टाइटल हमारे लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि अकेले रहना यानी कि बड़ा लोग सुनते नहीं, पर भगवान कृष्ण के साथ। एक डिवोटी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने रिट्रीट अटेंड किया। तो या वो जाते हैं गिरिराज के साथ में, यानी स्वयं भगवान कृष्ण है, और वहां पर हरि नाम करना, दैट्स इट। जो मिनिमम मिनिमम ड्यूटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो करना, और उसके बाद हरि नाम लेना गिरिराज जी के पास में, तो रिट्रीट सेंटर में। तो ये महाराज बता रहे हैं, और फिर ने बोला, और ये श्लोक चैतन्य चरितामृत का कोट किया कि तुलसी महारानी को एक स्थापना करो, यानी उनका पौधा लगाइए, उनकी जल दीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, और साथ ही साथ निरंतर हरि नाम कीजिए। और इसको शिला प्रभुपाद काफी जोर देते हैं। प्रभुपाद का भाव हम इसमें देख सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं क्या समस्या क्या है, इसके लिए क्या, इसके लिए कहीं पर भी आपको एक छोटा सा स्थान मिले, चार आपको बैम्बूज या चार लकड़ी के लट्ठे ला करके आपको जमीन में गाड़ने हैं, और उसकी कुटिया बना सकते हो आप। वहां पे कुछ छत बना सकते हो, घास जो भी इत्यादि से, और वहां पर आप तुलसी का पौधा लगा करके उसको जल अर्पण कर सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, और इस तरह निरंतर हरिनाम कर सकते हैं। और इस तरह बहुत ही तीव्र गति से, जैसे हम जानते हैं, सुनते हैं कि तुलसी महारानी जो है वो भक्ति देवी है, और वो हमें भक्ति प्रदान करती है। कई डिवोटीज हमने सुना है से अपने पद्मनाभ प्रभु जी भी बताते हैं कि ये जस्ट बच्चों को छोटा सा एक्टिव कराना है, हमारी तुलसी महारानी से प्रार्थना करना, बहुत ही वो ईगरली भक्ति प्रदान करे। तो इस तरीके से हम बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। बात बोल रहे हैं। Thus one can make vigorous spiritual advancement. This is not at all difficult. So here you can see Prabhupada's heartbeat a little bit. I will come to draw to the close now. Once, my dear devotees, I climbed up his balcony from outside, free climbing, and came on his balcony when he was resting, and I wanted to see what is he doing when he's sleeping. Is he sleeping differently? And I went to the window. It was a little open, and I could see him lying down in bed. As he was facing me, and I heard Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What is the Hare Krishna people always take every opportunity to chant? You have not chanted? Huh? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. He was sleeping and he was chanting. He lives in Krishna. So दूसरा महाराज अपना, so
या पहला जो पास टाइम जो प्रभुपाद का जो शिक्षा तुलसी महारानी की सेवा, तो उसमें महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद ने शब्दों को विग्रस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो यानी बहुत ही तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तुलसी महारानी की सेवा करके और हरि नाम का जप करके। तो कह रहे हैं कि आप महसूस कर सकते हो शिला प्रभुपाद के जो हृदय के भाव इसमें। सो ये पास टाइम था। अब दूसरा महाराज बता रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत शिला प्रभुपाद के साथ, जो शिला प्रभुपाद एक बार विश्राम कर रहे थे, तो महाराज जानना चाह रहे थे क्या करते हैं प्रभुपाद, जिज्ञासा। तो वो उनकी बालकनी में सीढ़ियों ऊपर से चढ़ करके उन्होंने वहां से खिड़की से देखने की कोशिश की। वो प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो क्या जिस तरह की जिज्ञासा, जिस तरीके से भगवान से अर्जुन भी पूछते हैं क्या स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो सोते हैं, कैसे वो बात करते हैं, तो ये बहुत ही सब कुछ उनका दिव्य होता है। तो ये महाराज के देख रहे हैं कितने आतुरता महाराज की थी, गुरुनिष्ठा। तो प्रभुपाद के हर एक उनके जो व्यवहार है उसको देखना चाहते थे, महसूस करना कि शुद्ध भक्त कैसे। तो देखा कि प्रभुपाद लेटे हुए हैं बिस्तर पर, और परंतु सामान्यतः हम भी विश्राम करते, परंतु उस ऐसे लेटे हुए पर फिर भी प्रभुपाद बोल रहे थे हरे कृष्ण नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महाराज बोलने के बाद महाराज ने बहुत एक इम्पोर्टेंट देखा कि डेवोटी बाकी सुन रहे थे। तो महाराज ने बोला कि आपके पास भी अवसर था अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का, पर लेकिन आपने इसको अवसर का उपयोग नहीं किया। फिर से महाराज हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। और तो ऐसा कहने का उदाहरण कि जो भी हमें निरंतर करो हरि नाम सेवन, तो जितना भी हमें अवसर मिले माला पे करते हैं, परंतु जब भी हो तो हमें हरि नाम को बोलना चाहिए। इसलिए कई बार भक्तिदान सरस्वती ठाकुर किसी भी आर्टिकल को देखते थे कि कितनी बार कृष्ण का नाम आया, चाहे उसने ब्लास्फेमी ही क्यों नहीं किया है। यदि किसी आर्टिकल ने हरे कृष्ण आंदोलन, इसको जो भी उस समय गौड़ी मठ के अगेंस्ट में कुछ भी लिखा है, परंतु वो देखते थे कि कितनी बार इसने कृष्ण का नाम लिखा है। अच्छा, इतने बार कृष्ण नाम तो बहुत अच्छा है, बाकी मैटर नहीं पढ़ते थे। सो इसी तरह महाराज हमें इनकरेज कर रहे हैं, जब भी हमें ऐसा अवसर मिले, गुरुजन बोलते हैं हरि हरि नाम बोलते हैं, या फिर जब भी है तो हमको दोहराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सुनते हैं। He was sleeping and he was chanting. He lives in Krishna. So I looked with that, wide open mouth, staring glance, exactly how a person looks, which goes totally on your nerves. And Prabhupada just opened one eye and just looked at me. He had become aware of me, and his glance said, enough. So I hurried over the balcony and then again climbed down the lightning conductor. I had the information I needed, I wanted. Yes, so this is our Prabhupada. He lives in Krishna. But he has, in order to Yasya Deva Tataguru serve his spiritual master, left Vrindavan, where he was perfectly satisfied, and gone to the West, associated with people who were so different from him, let's say it like this, to give them Krishna consciousness, because he is the living example of following this verse. Only unto those souls who have implicit faith in both the spiritual master and the Supreme Personality of Godhead are all the imports, the important things, the content of the Vedic scripture automatically revealed. No? He lived that by his example.
I will end with one prayer to Prabhupada. So, इस तरीके से महाराज खिड़की से प्रभुपाद को देख रहे हैं। प्रभुपाद लेटे हुए हैं, फिर भी उनके मुख से हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो ये देख करके महाराज बोल रहे हैं कि मेरा मुख खुला रह गया, एकदम आंखें एकदम बड़ी, क्योंकि मैं देखता रह गया। वाह प्रभुपाद, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, फिर भी हरि नाम चल रहा है। और उसी समय प्रभुपाद एक आंख खोलते हैं और महाराज की तरफ देखते हैं कि करे कि शायद महाराज प्रभुपाद को ऐसा आभास हो गया कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, और करे कि वो जो एक दृष्टि थी, वो एक झलक थी, वो पर्याप्त थी मुझे। तो मेरे हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से तुरंत ही दौड़ता हुआ एक बिजली की भांति नीचे आए। सो ये हमारे शिला प्रभुपाद हैं। ये प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के साथ थे। तो ये सतत, तो ये जो श्लोक जिसको महाराज ने उद्धृत किया, वो श्लोक शिला प्रभुपाद पर, उस श्लोक के उदाहरण है। शिला प्रभुपाद 100% शिला प्रभुपाद उसको जीते थे। तो ये भगवान कृष्ण के साथ हैं। और दूसरा, यस्य देवे तथा गुरु, तो ये भगवान के प्रति हमने देखा सतत सो रहे हैं, जब भी हैं तभी भगवान के हरि नाम का पूर्ण आश्रय लिए हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और गुरु के आदेशों की यदि हम बात करें तो क्या प्रभुपाद ने जब से उनके गुरु महाराज ने जो उन्हें आदेश दिया, उसमें वो लग गए। बहुत बड़ा कार्य था कि पूरे विश्व में भगवत भागवत शिक्षा का प्रसार करना इंग्लिश भाषा में। परंतु वो आदेश को अपने हृदय में उन्होंने रखा, और उस आदेश के लिए जो धीरे धीरे जो भी आवश्यक है वो कदम उठाते गए, बहुत सोच समझ करके, सावधानी पूर्वक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक लेसन है कि कई बार जो एक सीन याद आता है रामायण का, कि जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता को लेने के लिए, और वो तो एकदम जाने से पहले गुरु महाराज को बहुत अच्छे समझाते हैं कि वो जो दीवार पर बैठ करके बहुत चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट, तो जब हम सेवा करते हैं, सेवा में कोई एकदम आवेश में आकर के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, बहुत थॉटफुली, क्योंकि वो भगवान के एक दूत के रूप में गए हैं। तो उनके हर एक कार्य भगवान के नाम को और भगवान की एक तरीके उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन को धीरे धीरे उस आदेश के अनुसार ढाला, और अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके वो वृंदावन में रहे, और उन्होंने वृंदावन के इतने पवित्र स्थान, राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पर वो रह रहे थे, उससे उससे बेहतर कोई स्थान हो नहीं सकता है। परंतु उसको भी उन्होंने परित्याग छोड़कर चले गए और पाश्चात्य देशों में गए, और पाश्चात्य देशों में जा करके अपने गुरु के आदेशों का पालन किया। इसलिए जिनका, अगेन महाराज इस श्लोक को बोल रहे हैं, जिनकी श्रद्धा गुरु में है, और जिनकी भगवान में अटूट श्रद्धा है, जिनकी गुरु में अटूट श्रद्धा है, तो जो भी महत्वपूर्ण है, जो सार है वेदों का, जो उन्हें जो चाहिए, वो सब कुछ उनके स्वतः ही उनके दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाए। ये महाराज ने शेयर किया, और इसके बाद महाराज अपनी व्यक्तिगत कोई प्रार्थना बताने जा रहे हैं। Revealed. No? He lived that by his example. I will end with one prayer to Prabhupada. I learned this from Indradyumna Maharaj. I offer my obeisances to my spiritual master, who gave me beautiful Kanti Mala, effulgent tilak, the beautiful form of a devotee. He gave me the life of a devotee.
and who offered me his shelter. In one of his hands, he is holding my hand, and with the other hand, he is holding the lamp of knowledge, which helps me to cross over the dark ocean of the material world. Surdas, he's the poem who wrote, says, my Guru deserves the सो महाराज अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना शिला प्रभुपाद को ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मैं जो प्रार्थना बोलने जा रहा हूँ ये मैंने इंद्रदुम्न महाराज से सीखा है। तो मैं अपने तो शिला प्रभुपाद अपने गुरु को उनको प्रणाम करता हूँ और क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर शिला प्रभुपाद यानी कृतज्ञता का इजहार एक तरीके से शब्दों को एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कहने का मतलब ये है कि पहले तो महाराज का स्वभाव देखें, गुरु भाई हैं इंद्रदुम्न महाराज, उसको एक्नॉलेज करते हैं उन्होंने उनसे जो सीखा। अब इसके बाद में जो महाराज ने जो प्रार्थना इंद्रदुम्न महाराज से जो उन्होंने सीखा उसमें बता रहे हैं कि गुरु को प्रणाम करना और उनको कृतज्ञता का इजहार कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि बहुत ही सुंदर ये जो कंठी माला दिया, तिलक दिया और एक बहुत ही सुंदर ये भक्तिमय जीवन प्रदान किया और ये एक शरण दी, तो ये उसके लिए कृतज्ञता का इजहार। और ये गुरु महाराज मेरा एक हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में उनके आम, प्रकाश दिखाने के लिए ज्ञान की ज्योति है और इस तरीके से मुझे इस भौतिक संसार के जो अंधकार है उससे मुझे बाहर निकाल रहे हैं, मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये महाराज ने शेयर किया और आगे और भी इसका कुछ पार्ट है, सुनते हैं। lamp of knowledge which helps me to cross over the dark ocean of the material world. Surdas, he's the poem who wrote, says, my Guru deserves the greatest respect because only he can rescue one in a blinking of an eye. I bow down to him again and again and again. Śrīla Prabhupāda ki jai. Swami Sachinandan Maharaj ki jai. हरे कृष्णा। तो आगे महाराज फिर और एक छोटा सा प्रार्थना और बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करें कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो सर्वोच्च सम्मान उनकी तरफ जाता है क्योंकि वो मुझे एक जस्ट जितनी आंख झपकती है उस समय में मुझे बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके सतत उनके चरणों की अर्चना करता हूँ, उनके शरणागत रहता हूँ। तो यहाँ पर स्वामी महाराज का लेक्चर कंप्लीट होता है, समय भी ऑलमोस्ट हो गया, तो कल से हम आगे का लेक्चर पूरा आगे नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे। So thank you. So sorry, I could not hear it again. So कुछ चीजें कनेक्ट नहीं हो पाई हैं तो या फिर कुछ इसमें छूटा है तो प्लीज आप ऐड कीजिएगा और जिन डिवोटीज की आज की शेयरिंग है वो कर सकते हैं, देन रेस्ट ऑफ द डिवोटीज कैन डू द शेयरिंग। थैंक यू।
Okay. As per list, Rahul Prabhu and Ram Priya Prabhu here. Yeah, Rama Priya Prabhu is not here. Rahul Prabhu, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? जी प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू फॉर ट्रांसलेशन। तो वॉइस इज क्लियर? Yes, Prabhu. Please go ahead. थैंक यू। तो आज की ये जो क्लास है उसमें जो समझने लायक लगा, एक तो महाराज ने जो शुरू में कहा था कि हम प्रिजन ऑफ परसेप्शन वेयर वी आर लॉक्ड अप, जो हम धारणा बना लेते हैं वहाँ हम कैद हैं। तो वहां से शुरू करते हुए फिर महाराज ने अ, जो एसेंस ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर, और फिर कैसे बताया कि हमें शेल्टर लेना है राइट गुरु का, और गुरु और कृष्ण में हमें एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। तो उसी को महाराज फिर आगे बताते हुए जो प्रभुपाद का वर्णन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगा कि हम फिर एक क्लास तो मैं सुन ही रहा था कल। एक बुक थी मेरे पास पुरानी प्रभुपाद की, ए सेकंड चांस, वो भी मैं पढ़ रहा था साथ में। तो दोनों को मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि कैसे प्रभुपाद का जो व्यवहार है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रभुपाद बार बार अपने डिसाइपल से जो अजामिल ब्राह्मण की जो स्टोरी है उसको बता रहे थे बार बार। तो वो पढ़ते पढ़ते मैं समझ पा रहा था नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो वहाँ प्रभुपाद बार बार डिस्क्राइब कर रहे। इससे पहले वाली भी क्लास जो थी वो भी इसी विषय को लेकर थी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अनफॉर्चुनेट सोल, हम कि कितने हम अनफॉर्चुनेट है। तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद ऐसा क्यों बार बार अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सोल कह रहे हैं। तो फिर आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि कैसे हम एक जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है या जो बॉडीली कंफर्ट है उसमें हम घिरे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और प्रभुपाद बार बार वो पिन कर रहे हैं कि आउट ऑफ बॉडी कॉन्सेप्शन में हमको आना है, आउट ऑफ बॉडी कॉन्सेप्शन में आना है। तो यही प्रभुपाद का जो व्यवहार है कि किस तरह से हम भगवान में और डिवोशनल एक्टिविटीज में एंगेज रह के हम भी कृष्ण एब्जॉर्प्शन में रहे, ताकि हम अकेलापन महसूस न करें। और हमारा माइंड जो है वो ब्रेन को यूज करता है, वो ठीक से करे, वो कृष्ण और गुरु के अनुसार ही हमारा जो माइंड है अपने ब्रेन को यूज करे। तो बस यही कह रहा था मैं कि जो माइंड है उसको शुद्धि जरूरी है, ताकि वो ब्रेन का ठीक से यूज करे और उससे हम बेहतर डिवोशनल सर्विसेज कर सके। तो अ, ये लगता है। तो Yeah, ठीक है thank you. प्रभु। Thank you so much. Yeah. Srila Prabhupada, you know, वही लिखते हैं जो हमारे लिए अभी नीडेड है। Don't go on. तो जो व्यवहारिक है, जो हमें आज भौतिक संसार में अध्यात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, तो प्रभुपाद उसको बार बार स्ट्राइक करते हैं। जस्ट ऐसा नहीं प्रभुपाद लिखते कि जस्ट एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ लिख दो, परंतु जो हितकारी है वो लिखा प्रभुपाद ने बार बार। थैंक यू। सो माता जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीडियंस और प्रभुपाद। यस माता प्रभु जी, दंडवत आवाज आ रही है प्रणाम। मेरी? यू कैन हियर दंडवत मी? प्रणाम माता जी। यस माता जी, इट्स क्लियर। या ओके ओके प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल ट्रांसलेशन। बहुत ही अच्छा लगता है जब व्हेन वी हियर द क्लास एंड देन वी हियर द ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेशन, फिर वो और अच्छे से और डीपली वो अंदर मैसेज जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर्विस ऑल द ट्रांसलेटर्स। एंड आज के क्लास में जो सच्चिदानंद महाराज जो बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद का की जो श्रद्धा थी हरि नाम के प्रति, अ, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। कि
एक्चुअली ऑफ लेट हम लोग, मैं और प्रेमतरंगी माता जी, हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो हम लोग यमुना देवी माता जी का बुक पढ़ रहे हैं, उनकी बायोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें माता जी भी सेम यही चीज कहती हैं कि जो शुरुआत हुआ था, जो फाउंडेशन था हरे कृष्णा मूवमेंट का, तो शुरू शुरू में जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में जब ये मंदिर शुरू किया, तो किसी को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, बुक्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट हरिनाम था। और उस बुक में पढ़ के ये एहसास हो रहा था कि वो लोग हर दिन ऑलमोस्ट 3-4 घंटे वो कीर्तन करते थे साथ में बैठ के। प्रभुपाद यूज्ड टू एंगेज देम लाइक दैट। और शिला प्रभुपाद का एक ही मेलोडी था, वो ज्यादा 2-3 मेलोडी भी नहीं गाते थे, 1-2 मेलोडीज गाते थे शिला प्रभुपाद। और एक सिंपल करताल और मृदंग होता था, और प्रभुपाद के साथ ये सब लोग बैठ के जो है घंटों भर प्रभुपाद उनसे कीर्तन करवाते थे। और कभी कभार 15-20 मिनट का क्लास होता था। लेकिन जो उस हरिनाम की महिमा, उस शिला प्रभुपाद की इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी हरिनाम के ऊपर, कि जस्ट थ्रू द होली नेम एवरीथिंग विल हैपन, एंड so it became the explosion. एंड मुझे वही लग रहा था कि हम एक्चुअली, जब मैं ये सब शिला प्रभुपाद के शिष्यों को मैं सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे हार्ट में तो कुछ प्रेम है ही नहीं गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। आई फील सो एम्प्टी इनसाइड, इट्स ऑल वो श्रद्धा, और वो जो इनको सुन के लगता है, अभी आगे और सुनेंगे तो कितना इनके हृदय में वो अपार प्रेम है अपने गुरु के प्रति। तो इसका अभिधेय क्या है? हाउ डू वी एक्चुअली एक्ट इन द रिलेशनशिप विद द गुरु? उसका अभिधेय यही है कि गुरु ने जो हमको दिया है, द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव रिसीव्ड, उनको हम इनिशियली, हमें ज्यादा, क्योंकि हम लोग इतने कवर्ड हैं, इतने हमारी बुद्धि इतनी मंद है कि हम एक्चुअली सारी फीलिंग्स हम फील भी नहीं कर पाते, हम कुछ फील ही नहीं कर पाते हैं, ये ग्रैटिट्यूड ये सब। लेकिन एटलीस्ट हम वो अभिधेय अगर हम पकड़ के रखेंगे कि गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भक्ति की जो प्रोसेस है, विधि साधन भक्ति, इसको हम पकड़ के रखें और वैष्णवों का संग बनाए रखें। और जैसे आज महाराज बोल रहे थे, तुलसी महारानी की सेवा इतनी सिंपल है, हर दिन तुलसी की सेवा करो। तो ये जब हम पकड़ के रखेंगे, सो दैट इज हाउ वी आर एक्टिंग इन द रिलेशनशिप विद द गुरु। एंड धीरे धीरे जो है वो कॉन्ट्रास्ट हमें समझ में आएगा, स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है, वी स्टार्ट फीलिंग इट मोर एंड मोर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये मुझे लग रहा था। सो हरिनाम जो है, कृष्णा's holy name is so powerful. Even if somebody is completely covered over and not able to perceive anything, एकदम अंध, gross हमारे senses हैं, फिर भी हरिनाम can penetrate that. एंड मुझे वही लग रहा था कि जैसे गृहस्थ लाइफ में भी कई बार, मैं अपने लाइफ में मैं देखती थी कि कई बार गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीजें ऊपर ऊपर नीचे हो जाती है, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, बच्चों के कुछ प्रेशर होता है, ये होता है। बट मुझे लग रहा था कि अगर साथ में मिलके 15 मिनट भी हम लोग बैठ के कीर्तन करें, जस्ट हरि नाम का संकीर्तन करें रोज, दैट इज सच अ प्रोटेक्शन एक्चुअली। तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगा सुन के, द अमाउंट ऑफ फेथ that Srila Prabhupada had on the holy name, that he took a ship across across the world at that age. It's amazing. So, I mean, and that was the instruction that he got from his guru. So Prabhupada, even at that stage, he was still acting on the instruction. तो हम लोग कभी उस मुक्त मुक्त नहीं होते हैं, और नहीं चाहते हैं वो वाले इंस्ट्रक्शन से जो गुरु ने हमने जो दिए हैं। मिनिमली जो हमारी चैंटिंग है, जो हमारा वैष्णव संघ है, सेवा है, तो वी शुड नेवर वांट टू एक्चुअली बी फ्री ऑफ दोस इंस्ट्रक्शंस। हम हमेशा इटरनली हमें बंधे रहें, और उस अभिधेय में जब हम एक्ट करेंगे तो अमेजिंग थिंग्स हैपन। तो वेरी इंस्पायरिंग। श्रील प्रभुपाद गुरु निष्ठा, और फिर प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, उनकी उनकी जो गुरु निष्ठा है उनके गुरु के प्रति, बहुत ही इट्स वेरी एनलाइवनिंग टू हियर। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Thank you so much, Mataji, for bringing it to the practical application. ये नहीं है हमारे हृदय में, परंतु उसके लिए हमें एटलीस्ट अभिधेय हम कॉपी नहीं कर सकते, परंतु हम जो हमें करना है उनको हम करेंगे तो थोड़ा श्रद्धा जागृत होगी। एंड अप्रिशिएट करना है महाराज सचिदानंद महाराज को देख के ही अपने आप में
first time I got opportunity to see Maharaj. So happy, jubilant. खुद ही महाराज था. He's so happy रहते हैं महाराज, एकदम प्रसन्न. गोवर्धन के. Very simple. Okay, next is Prabhavati Gopi Mataji. Accept करेंगे. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna to all devotees, Dandavat Pranam. So thank you. And yes, Prabhupada की life अभी मैं जैसे मेरा ये 4.5-5 month जो था वो इतना ट्रांसफॉर्मिंग था, क्योंकि जो भी टीचर्स थे मेरे भक्ति शास्त्री में सबसे पहला सेंटेंस यही बोलते थे क्लास में कि भक्ति शास्त्री इज नॉट अबाउट गेटिंग द सर्टिफिकेट, इट इज अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद्स मूड, प्रभुपाद की क्या इच्छा थी और प्रभुपाद के वर्ड्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग हिज वर्ड्स एंड मूड्स. एक बार सर्वभौम प्रभु ने भी यही बोला था कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बोला ठीक है ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट पहले तुमको ये समझ आ रहा है कि प्रभुपाद का मूड क्या था और प्रभुपाद के पट में लैंग्वेज क्या है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, बाकी फिलोसफी सारी समझ आ जाएगी. And then once Vadan Prabhu were there, so he was every Bhagavad Gita class was more of Prabhupada pastime. वो प्रभुपाद की इतनी सारी लीला डिस्कस करते थे. एक लीला जो मुझे इतनी टचिंग लगी, लाइक दैट डे आई क्राइड कि प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना किया. और अभी मतलब मेरे पर्सनल उसके लिए कि मैं चैंटिंग भी 16 माला भी मतलब केयरफुली नहीं कर पाती हूँ. तो एक वो पास टाइम का उनका मॉस्को का प्रभुपाद थे, सुतकीर्ति प्रभु थे, शायद उनके पर्सनल सर्वेंट बन के गए थे, और एक और प्रभु थे जो कुक बन के गए थे. तो रशिया में वैसे ही परमिशन नहीं मिलती थी, 3 days का उनको स्टे मिला था और किचन एक ही दिन का मिला था. एंड वहां पे नॉनवेज बन रहा है, बाजू में एग हो रहा है, सब हो रहा है. सो कुक came and told and सुतकीर्ति प्रभु went to buy vegetables and all, but उनको कुछ नहीं मिला वहां पे, सिर्फ मिल्क मिला. डेयरी प्रोडक्ट बहुत मिल रहे थे, मिल्क, शुगर और राइस, वो भी बहुत गंदे क्वालिटी के स्टिकी राइस. सो एंड आटा मिला. तो प्रभुपाद सेड ओके नो वरी, ब्रिंग दैट. सो आटे की रोटियां बनाई या पूड़ी बनाई और खीर बनाई. तो 3 दिन का पूरा बनाना था. तो उन्होंने जो कुकर वगैरह जो भी थे बनाया, और बाकी जो खीर थी वो सारे बर्तनों में भर दी और कुछ खीर बनी थी. सो दैट whoever was the cook, he came to प्रभुपाद की इतनी खीर बची है, इसको क्या करूं मैं, किसी को दे. तो प्रभुपाद बोले नो, 3 दिन का सर्वाइवल है और अब ये प्रसाद है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो बोले बर्तन नहीं है हमारे पास. तो उन्होंने बोला कि जाओ मेरे बाथरूम का जो लोटा है वो लेकर आओ, उसको धो लो. तो बोला नो प्रभु, प्रभुपाद को बोला नो प्रभुपाद, आई कैन नॉट डू दैट. बाथरूम का लोटा वो तो सूची नहीं है, हाउ कैन वी यूज दैट. प्रभुपाद बोले नो, हायर पर्पस क्या है, मैं खा लूंगा उसको, तुम लोग मत खाना, मैं खाऊंगा उस लोटे की खीर, उसको धो के लाओ. तो वंशीधर प्रभु ने हमसे पूछा कैन यू एवर डू दैट, जो तुम टॉयलेट में अपने लोटा यूज कर रहे हो उसको धोकर उसमें खीर रख के, कैन यू ईट. So that was Prabhupada's conviction कि मुझे जो अपनी करनी है प्रीचिंग या जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए छोटे छोटे नियम और ये सब चीजें, मतलब मोड ऑफ गुडनेस से भी प्रभुपाद हट गए. सो ही हैज डन सो मच फॉर अस. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हाँ प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया और हम मतलब मेरे लिए स्पेसिफिकली कि मैं प्रॉपर चैंटिंग भी नहीं कर पाती हूँ. एंड देन सिमिलर सो लाइक आई वाज मोर, उससे फेथ और कन्विक्शन इतना बढ़ गया, श्रद्धा इतनी बढ़ गई प्रभुपाद के लिए. एंड देन आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, और 2 दिन बाद ही मुझे मेरे जो फैसिलिटेटर है किंचन प्रभु, उन्होंने हरीशौरी प्रभु की 2 बुक्स लाके दी. तो अभी मैं वो पढ़ रही थी, लास्ट बैक टू वृंदावन जो फाइनल लीला करके है प्रभुपाद की. उसमें कुछ चीजें इतनी टचिंग है. देयर वाज वन सेंटेंस प्रभुपाद ने एक बोला है कि अपने डिजायर है, लाइक प्रभुपाद बिल्कुल वीक हो गए थे, हाँ पूरी हड्डियां उनकी आप देख सकते थे. ही हैज रिटन लाइक दिस, बट प्रभुपाद इनको शायद some devotee asked how could you manage. तो प्रभुपाद ने बोला डिजायर, इफ यू हैव डिजायर यू कैन अचीव एवरीथिंग. एंड गुरु महाराज ने भी, जब मैं वृंदावन शिफ्ट हो रही थी तो महाराज ने भी यही बोला था मुझे, इफ यू हैव डिजायर एंड यू पुट प्रॉपर एंडेवर यू विल रिसीव द मर्सी. सो दैट वाज वेरी वेरी हार्ट टचिंग. एंड मुझे वापस सब चीजें याद आई कि नो यस, डिजायर हमेशा हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए होना चाहिए, चैंटिंग इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए. तो धीरे धीरे एफर्ट्स करते, आई डोंट हैव टू लेमेंट और फील वेरी बैड कि नहीं हो रहा है. आई हैव टू बी वेरी वेरी मच सिचुएटेड, एंडेवर करते रहना चाहिए और डिजायर यही होनी चाहिए. तो देन मे बी आई विल रीच. तो प्रभुपाद के पास टाइम सभी इतने अट्रैक्टिव और इतने वो हो गया. ये 5 months इट इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग. एंड देन सचिनंदन प्रभु ने अलोन विद कृष्णा बोला था, तो आई एम लिटिल
fortunate this time. मुझे VIHE, I'm serving VIHE as a staff now for few hours. So they have like asked me to join alone with Krishna. They have given me a very little service, promotional वो करने हैं सारे कोर्सेज के, तो सिर्फ डेस्क पे। तो यूजली जो सर्विस में होते हैं स्टाफ, उनको लेक्चर सुने नहीं मिलते हैं, बट आई एम लकी इनफ कि मुझे माता जी ने बोला यू कैन हियर ऑल द लेक्चर्स, और जो तुम्हारा प्रमोशनल वो है वो तुम करो। तो दैट इज like how this mercy comes. It is so just I wanted to share this. Not able to express much this time. Thank you. Hare Krishna. Yeah, thank you Mataji. You're so fortunate to be there and serve. और ये जो आप बता रहे हैं, एक्चुअली ये ही गिफ्ट है जो कि हमें लेना है या रिसीव करना है। कि बुक्स तो रहेंगी, बुक्स आने वाले 10,000 वर्षों के लिए प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन बुक्स का कॉन्टेक्स्ट यानी किस भाव में प्रभुपाद ने लिखा है वो रिसीव करना इन प्रभुपाद के शिष्यों से या फिर उनके शिष्यों के जो सत्शिष्य हैं उनसे। क्योंकि अदरवाइज प्रभुपाद की किताबों से व्यक्ति कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं अलग अलग। सो ये बहुत ही व्हाट यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव दैट। थैंक यू। सो वी हैव 2 minutes शांतिपुर प्रभु। Yeah. Hare Krishna, Babuji. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Thank you very much, Prabhu. Nice translation. बस 1-2 मिनट ही हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। बस प्रभु जब सॉरी जब प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन चलता है तो माय हार्ट बिकम वेरी और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है जब डिवोटीज से सुनता हूँ और जब प्रभुपाद के बारे में चलता है। तो बस यही लग रहा था प्रभु, जो एक क्वेश्चन याद आ गया था, एक डिवोटीज ने गुरु महाराज से पूछा था कि आप इतने सालों तक जो है कृष्ण भावनामृत में आप कैसे जो है अपने आप को बनाया हुआ है और कैसे आपने इसमें उन्नति की है। तो गुरु महाराज का यही आंसर था कि ग्रेटिट्यूड। आई मीन गुरु महाराज का आंसर था कि जिन्होंने मुझे परिवर्तन किया है, यानी जिसके कारण प्रभुपाद के कारण जो मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, तो वो एक पार्ट जो है मैं रिकॉल कर पा रहा था कि अगर हम हमेशा ये भाव रखेंगे कि मेरी लाइफ जो अभी है वो जो पहले थी, तो मेरे में जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के कारण ही आया है। तो वो एक ग्रेटिट्यूड जब मैं सोचता हूँ कि पहले मैं क्या था और अभी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ गुरु की कृपा से ही कर रहा हूँ, तो ये सब कृपा जो है प्रभुपाद की है। अगर प्रभुपाद न होते तो मैं क्या करता होता मुझे पता है। तो मीनिंग ये कि बस यानी जब ऑफकोर्स यानी जो मटेरियल वर्ल्ड के जो पिंचेस हैं वो तो माइंड में आते रहेंगे, लेकिन जब अपन ये देखते हैं कि मैं आज जिस भी सिचुएशन में हूँ उसके पीछे मेरे मेंटर गुरुदेव प्रभुपाद, तो उनकी कृपा से ही ये हुआ है। तो जब एक ग्रेटिट्यूड हृदय से जब अपन फील करते हैं तो हम और गुरुदेव के करीब जाते हैं और प्रभुपाद के करीब जाते हैं। बस यही लग रहा था कि जैसे उसमें बताया था कि जो कंठी माला भी दी है उन्होंने उनकी कृपा से मिली है, या जो उसमें बताया था कि तो मीनिंग लाइक जैसे अभी रिसेंटली एक पर्सन है वो वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कंठी माला के बारे में मेरे से पूछा कि मैं एक कंठी माला पहन सकता हूँ क्या। तो मेरे बोलने के पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि मैंने 3-4 साल पहले से नॉनवेज और ड्रिंक करना छोड़ दिया है। तो वृंदावन जा रहे थे इंदौर इस्कॉन ग्रुप के साथ वृंदावन, तो मेरे से पूछ रहे थे कि अभी मैं लेकिन गुटखा और ये सब खाता हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करते हो, बस ये कंठी माला आप वृंदावन जा रहे हो तो बस उसको राधा श्याम सुंदर से ऑफर करके और गले में पहन लेना। तो मीनिंग लाइक कि अभी ऐसे भी हैं जो कि अभी ट्राइंग कि मर्सी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग देखें कि हमारे ऊपर कितनी सारी कृपा बरस चुकी है। तो ये सब लग रहा था प्रभु, ग्रेटिट्यूड शिला प्रभुपाद के लिए। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद एंड गुरुदेव। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। सो समय हो गया, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं।
we'll continue tomorrow.